Dear students, Assalamu alaikum. Today I will be giving you a demonstration of your experiment number 10 for your electric circuit analysis 1 lab, and its title is to verify maximum power transfer theorem. And this is a very basic type of theorem that you must have studied previously as well, and also in your theory lab. And in case you don't have studied it yet, but you will but I'm sure that you will study it in the later phases. Now, what is the maximum power transfer theorem? According to this, any circuit will be able to provide maximum power to a load resistance provided the value of the load resistance is equal to the Thevenin or Norton equivalent resistance. Before I move forward to give you a detailed explanation of how you are going to implement this circuit, let me go to some details. Some theoretical details of this maximum power transfer theorem. Now, according to theory, let's say I have a circuit network here. Now, this is specifically applying to DC circuits. For AC circuits, this maximum power transfer theorem exists as well, but it has a bit different scenario for that. So it has two terminals. This network could be of anything, and you are simply protruding two terminals out of this, and you are placing a load resistance between these terminals. Now, what does maximum power transfer theorem says? That इससे पहले आप लोग शायद ये चीज़ already पढ़ चुके होंगे that maximum power is dissipated across the load resistance provided if your load resistance is equivalent to your source resistance. इसको हम in the form of this maximum power transfer theorem हम इसको देखते हैं that what does it claims? Claim इसका ये है that this source resistance is actually depicting what? This इस circuit की ये जो आपका network है इसकी equivalent resistance है which is either Thevenin equivalent resistance है या फिर Norton equivalent resistance है. Now theoretically we already know that viewing from any two terminals, the equivalent resistance of the whole circuit is either R Thevenin or Norton Thevenin. दोनों की values तो technically same ही होंगी, but थोड़ा सा concept a bit different है. But however, this source resistance is actually depicting what? Your Thevenin resistance or Norton resistance. तो हम इस पर्टिकुलर लैब में हम इसको एज क्योंकि हम वोल्टेज सोर्स कंसिडर करेंगे, हम करंट सोर्स कंसिडर नहीं कर रहे इसके अंदर एज सप्लाई, तो हम इसको एज थेवेनिन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम इसको इक्वेट करेंगे. नाउ क्लेम ये है दैट आर एल के ऊपर जब भी हम कोई भी सर्किट बना रहे हैं, इस आर एल के अक्रॉस पावर मैक्सिमम तब डिसिपेट होगी when we have RL equals to or approximately equals to R Thevenin. अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं. Let's say I have the circuit like this. Right, and I have two terminals. ये आपका major circuit है, and these are the two terminals जिनके across आप RL apply कर रहे हैं. This load resistance is very much dependent upon the functionality या performance of this या ये जो आपका overall circuit है इसकी efficiency के ऊपर ये load resistance depend कर रही है. Theoretically speaking, maximum power transfer तब होगी जब आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो हम एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं. इसको इट्स समथिंग लाइक दिस दैट आपने इस होल सर्किट को कन्वर्ट कर दिया इन दिस फॉर्म
as you have already studied before. This is your R Thevenin and this is your V Thevenin, right? तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम जो है वो ये कहता है कि वी टी एच ओवर आर एल प्लस आर टी एच, दिस शुड बी द केस, होल स्क्वायर टाइम्स आर एल, बिकॉज पावर का फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है, विच इज़ P equals I square R. And what is I? I in this case, let's suppose यहाँ पर एक I current flow कर रहा है, and this I is equal to what? This I is equal to VTH over RTH plus RL. तो इसी केस को मैंने इसी I को इस इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट किया है, एंड सॉरी नॉट इन दिस इक्वेशन, मैंने इस इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट किया एंड फाइनली आई गॉट दिस इक्वेशन. सो इस इक्वेशन से हमें बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है दैट आर एल और आर टी एच जो है इनका आपस में रिलेशनशिप है, एंड दिस रिलेशनशिप इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द पावर. पावर कब इंक्रीज़ होगी जब आप आर एल को इंक्रीज़ करेंगे, बट देयर इज़ सम हाउ अ पर्टिकुलर पॉइंट जिसके ऊपर आप आर एल इंक्रीज़ करते जाएंगे, बट आफ्टर दैट आपकी पावर जो है अगेन डिक्रीज़ होने लग जाएगी. वाई? बिकॉज आपका ये जो ओवरऑल करंट जो है ये भी रिड्यूस हो रहा है. तो इसको हम देखते हैं कि इसका रिलेशनशिप किस तरह का बनता है. It's something like we have RL over the x-axis and P at the y-axis, and there is somehow this point जहाँ पर एक RL की एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके ऊपर पावर मैक्सिमम होगी. Now you have to find in this lab that वो कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर RL की वैल्यू मैक्सिमम है. If you somehow try to derivate दिस इक्वेशन, ये जो आपकी इक्वेशन है इसको विद रिस्पेक्ट टू आर एल आप डेरिवेट करें, दैट देन इवेंचुअली यू विल फाइंड आउट योर ओवरऑल इक्वेशन कुछ इस तरह की बनती है दैट पी मैक्स तब होगी जब आपके पास आर एल बिकम्स इक्वल टू आर टी एच. इसको आप थियोरेटिकली डेरिवेट करके भी दे सकते हैं. बहरहाल फॉर दिस लैब दिस इज़ नॉट योर स्कोप. योर स्कोप इज़ दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस सर्किट, जो आपका ये सर्किट है मेन सर्किट, एंड यू हैव टू फाइंड आउट इट्स इक्विवेलेंट. जो आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है इसकी वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ आर थेवेनिन एंड वी थेवेनिन. वो फाइंड आउट करने के बाद you have to fix or vary this RL's value approximately. तब तक आपने उसको वेरी करना है जब तक आपने RTH अचीव नहीं कर ली. जब आपने RTH के इक्वल RL की वैल्यू अचीव कर ली, then you will find out theoretically and both practically that power dissipation across RL is maximum. So let's move back to this. Again, let's read out its definition. According to the maximum power transfer theorem, any circuit will be able to provide maximum power to a load resistance provided the value of the load resistance is equal to the Thevenin or Norton resistance. And for other values of load resistance, which means that RL की value अगर R Thevenin की equal नहीं है, either it is higher or lower, in both cases के अंदर power dissipation जो है वो कम होगी. So apparatus you will requiring is are obviously resistors and DC supply and virtual breadboard, and this is actually the circuit that you are going to implement. This is the main circuit. This is the main circuit, and जो मैंने यहाँ पर values mention की हैं यही values आप use करेंगे. राइट अब ये सर्किट आपने नोट डाउन कर लिया. उसके बाद आपने क्या करना है? आफ्टर दैट यू हैव टू वेरीफाई द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम.
तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि RL को रिमूव कर देंगे फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप में आपने RL को रिमूव कर दिया। आफ्टर दैट यू आर प्लेसिंग DMM हियर, या एक ओहम मीटर आप प्लेस करते हैं, एंड देन यू फाइंड आउट ये रिमूव करने के बाद यहाँ पर एक आपको शॉर्ट करना है, एंड देन यू फाइंड आउट R थेवेनिन, राइट। ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है दैट आपने अगेन यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाना है, राइट। एंड इस बार आपकी सप्लाई जो है वो ऑन होगी, एंड जो रीडिंग आ रही होगी वोल्ट मीटर के ऊपर वो होगी आपकी V थेवेनिन। ये दोनों वैल्यूज़ आपने नोट डाउन कर ली, एंड देन यू फिल दीज वैल्यूज़ हियर, V थेवेनिन, R थेवेनिन, V थेवेनिन, एंड इनिशियल V सोर्स आपने 15 वोल्ट्स रखी हुई, और R1, R2, R3 की क्या वैल्यूज़ हैं वो आपने यहाँ नोट डाउन कर ली। एंड आफ्टर दैट आपने क्या करना है कि ये जो आपने R थेवेनिन और V थेवेनिन फाइंड आउट किया, इसको लेकर आपने ये एक सर्किट इम्प्लीमेंट करना है। दिस इज़ नॉट नेसेसरी दैट आप इसको वेरिएबल वैल्यूज़ ही लें। वेरिएबल वैल्यूज़ ले लें बेशक, V थेवेनिन की लेने की ज़रूरत नहीं है, बट R थेवेनिन के लिए आप एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ले सकते हैं इफ़ यू आर ट्राइंग टू अवॉइड मल्टीपल टाइम्स आपको R की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो आपने अब क्या करना है दैट सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर आपने R थेवेनिन की वैल्यू यानी लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है दैट शुड बी इक्वल टू 0.8 टाइम्स R थेवेनिन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास R थेवेनिन की वैल्यू आई व्हाट, लेट्स सपोज 3.8 किलो ओहम्स आई फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है दैट यहाँ पर 0.8 टाइम्स 3.8 किलो ओहम्स, ये वैल्यू आपने यहाँ इंसर्ट करनी है यहाँ पर, और फिर उसके बाद आपने इस V12 ऑब्वियसली आपकी सेम रहेगी, या V12 आपकी एक्चुअली सेम नहीं रहेगी, ये V12 आप ये आपको बता रहा है कि ये एक्चुअली VL है, दिस इज़ इक्वल टू V12, राइट। सो आपने अब क्या करना है कि दिस इज़ इक्वल टू VL, आपने टर्मिनल 1 और 2 के अक्रॉस जो भी वोल्टेज अब आ रही है, आपने जब न्यू RL सेट किया, आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन द वैल्यू अक्रॉस RL जो आपने न्यू RL सेट किया हुआ था। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल समहाउ 3 किलो ओहम्स आ रही थी, इनिशियली 3.8 आपकी R थेवेनिन 3.8 थी, बट आपने 3.8 के बजाय 3 किलो ओहम्स सेट की, और देन यू प्लेस अ वोल्ट मीटर अक्रॉस हियर, एंड देन यू नोट डाउन V12। ये V12 नोट करने के बाद आपने यहाँ पर पुट कर दी, और उसके बाद आपने इस फार्मूले से जो पावर ट्रांसफ़र हो रही है या पावर डिसिपेट हो रही है उसको आपने कैलकुलेट कर लिया। एंड सेकंड स्टेप में अगेन अब आपने पहले 3 किलो ओहम्स ली थी, तो अब आपकी लेट्स फॉर एग्जांपल 3.2 किलो ओहम बन जाएगी 0.9 टाइम्स R थेवेनिन करने के बाद। तो अब आपने अगेन V12 मेजर किया सेम उसी प्रोसीजर से, अगेन यू हैव टू प्लेस वोल्ट मीटर अक्रॉस द न्यू RL की वैल्यू अब चेंज हो गई है। पहले आपने 3 किलो अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट की थी, आई एम नॉट गिविंग यू एन एग्जैक्ट फिगर, एंड आफ्टर दैट आपने इसको 3.2 पर सेट की 0.9 के करने के बाद, एंड देन यू अगेन नोट डाउन V12, एंड देन यू फाइंड आउट पावर कैलकुलेट करने के। उसके बाद 1 टाइम्स करने के बाद आपके पास लेट्स सपोज R थेवेनिन 3.8 थी, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.8 ही बन जाएगी। सो दिस इज़ एक्चुअली दी वैल्यू जिसके ऊपर हमारी एजम्पशन के अकॉर्डिंग PL मैक्सिमम आनी चाहिए। अगेन यू मेजर V12 एंड देन यू कैलकुलेट PL। आफ्टर दैट आपने इसको 3 या
3.97 कर लें फॉर एग्जांपल, अगर आती है 1.1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, अगेन यू मेजर वी वांट टू एंड देन यू फाइंड आउट PL। 1.2 करने के बाद ये लेट सपोज 4.2 किलो ओम्स बन जाती है। तो अकॉर्डिंग टू आवर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम दिस विल बी द पॉइंट जिसके ऊपर आपकी पावर की वैल्यू मैक्सिमम आ रही होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सब वैल्यूज़ पे मैक्सिमम इस वैल्यू से कम ही आ रही होगी। मीनिंग कि आपके पास RL की वैल्यू R थेवेनिन से चाहे बड़ी हो इस तरह या चाहे छोटी हो इस तरह, इन बोथ केसेस में P मैक्स अचीव नहीं होगा। P मैक्स अचीव होगा सिर्फ उस वक्त जब आपने RL को इक्वल रखा है R थेवेनिन के। So this is how you are going to actually fill up your this reading or measurements of this experiment, and after that you have to submit your lab report. आपने इसको verify जब कर लिया एक दफ़ा, and if it is not being verified then you have to go through your original context and आप इसको दोबारा से simulate करके देखेंगे आपने इसको कहीं पर कोई mistake ना की हो, and then you submit your lab report to your teacher. And if you have any questions about this then you can discuss with your teacher generally. So I'm going to end this session now. Allah Hafiz.